Hello everyone, welcome to UC Academy. Myself Shikhar Pratap Singh. I have scored All India rank 115 this year. ठीक है? I scored All India rank 115 this year in the UPSC CAPF examination. And in 2023, I also gave the interview, but unfortunately, I couldn't qualify that year. And apart from that, I also qualified the IBACIO 2023 examination. ठीक है? So I think I am a bit experienced, so that I can guide you in the paper 2 strategy, the CAPF paper 2 strategy video. Okay. So I'm going to guide you. Like I'll be talking about what should be the general strategy, what should be the do's and the don'ts of the paper 2. So we'll be talking about that. So here we begin. Okay. Introduction to paper 2. Fine. So this is the introduction to paper 2. What paper 2 comprises of? Paper 2 comprises of essays, argument writing, report writing, précis writing, comprehension, grammar, vocab and usage. These are the 6 topics that you need to cover in your paper 2 preparation. Okay. So these are the 6 topics. Essays are asked for 80 marks, argument 40 marks, report writing 20 marks, précis 15 marks, comprehension 20, and this grammar is 25 marks. So total it is 200 marks. 200 marks examination. Paper 2 is of 200 marks. Okay? See, 3 hours and it is of 3 hours and the 200 marks are the total. So this is the breakup of paper 2. So these are the topics that you should cover that are necessary to cover. Necessary to cover to score good in the CAPF paper 2 examination. Fine. So what is the nature of the paper? It does not test our knowledge alone, but clarity, structure, maturity of expression. These are the three things, because knowledge, it is already tested in the paper 1, though it is also necessary in the paper 2. I'm not saying knowledge is not necessary, but test not knowledge alone. It does not alone test knowledge, but also test clarity of thought, okay? Structure of your answers, structure of your essays, structure of your reports, everything, and maturity of expression. How maturely you express your thoughts on the exam sheet. ठीक है? तो आपको ये 3 चीजें जरूर टेस्ट होती हैं पेपर 2 एग्जाम में. ठीक है? स्कोरिंग पोटेंशियल. इफ पेपर 1 is elimination, paper 2 decides rank. ठीक है? If paper 1 decides your selection, then paper 2 decides your ranking. So you cannot be आपको दोनों एग्जामिनेशन या फिर दोनों पेपर्स को इक्वली वेटेज या फिर इक्वली फोकस करके पढ़ना है, इक्वली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है आपको, बिकॉज पेपर 1 make sure that you are selected and paper 2 gives you a ranking. Fine. So you have to equally focus on both the papers, and both the papers take place on the same day. So आपको दोनों पेपर्स को सेम फोकस करना है. ठीक है? And now we will move forward. Understanding the nature of paper 2. ठीक है? पेपर 2 का नेचर क्या है? We'll get to understand. UPSC looks for clarity of thought, as I already said, structure, already told, balanced view and relevance. What UPSC is demanding, though UPSC ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि we are demanding this from the candidate or we are demanding this from the answers, but this is usually expected from a CAPF aspirant, especially in paper 2, that these qualities should be reflected in his answer sheet. Fine. The clarity of thought, no jargon, simple language. No, you have to don't be of Shashi Tharoor School of English. ठीक है? So आपको उतनी भी highly advanced English नहीं लिखनी. Simple language, simple and lucid language. ठीक है? Structure, every answer must have intro, body, conclusion. The basic format that we always follow: intro, body and conclusion. Balanced view, no extreme opinions, not naming any personality, not naming any political party. ठीक है? कोई भी एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं देने हैं आपके. ठीक है? And relevance, answer what is asked, not what you know. Answer what is asked.
ठीक है, एंड स्टिक टू वर्ड लिमिट्स बिकॉज इट इज रिप्रिमांडेड. अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो फिर it reflects negative on your answer sheet and you can get negative marks also. ठीक है, तो आपको जितना वर्ड लिमिट दी हुई है वो हम डिस्कस करेंगे अभी कि वर्ड लिमिट क्या दी हुई है. ठीक है, रिमेंबर this is like your personality test in writing form. The end stage is personality or PI, personal interview, but this stage or the paper 2, it is your personality test in writing form. It is testing like what you think and what you write. ठीक है, so personality test checks your thinking, but if you are able to depict in writing form in a better way or in a beautiful way, then surely you can score good in paper 2. ठीक है, that this thing you have to remember. So now we'll move forward. Section wise strategy. I'll give you a section wise strategy of what are the topics or what are the things that you will face in the paper 2 examination. Essay writing, first of all. What are the major themes asked that or major themes repeated if you analyze the past year previous papers? As I already said in my previous video, past year question papers, you have to analyze them very well, very religiously, and every day. Like आपको पता होना चाहिए कि what questions was asked or what topic or what essay was asked in what year, and then you will be better handling your preparation or better guiding your preparation. ठीक है, क्योंकि आप फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन करोगे. द मेजर थीम्स आर सिक्योरिटी एंड डिफेंस, टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल इश्यूज, गवर्नेंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. एंड these are the major topics that are seen to be asked in the previous year question papers that I have analyzed, and these are the major themes that you should cover. These are not exclusive. ये आपको इतनी नहीं करनी है, ये तो दिस इज बेयर मिनिमम. इतने थीम्स तो आपको करके ही जाने हैं. ठीक है, फॉर द स्पेशली फॉर द एसे, बिकॉज एसे इज द मेजर चंक. 80 आउट ऑफ 200 मार्क्स, इट इज 40% ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है, 40%. तो आपको सबसे मेजर फोकस है वो इन टॉपिक्स पे जरूर करना है. इस पे ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ 40% ऑफ योर एग्जामिनेशन मार्क्स. ठीक है, सो नाउ वील सी व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी हम देखेंगे इसकी. ठीक है, स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर 10 to 15 broad themes, and if you analyze the paper, if you analyze the previous year papers, you will get to know that 10 to 15 ही themes हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं. और though the topics can be different, for example in federalism many types of for example if the theme is federalism, तो बहुत सारे issues they can ask many issues in the exam, but the theme is federalism. ठीक है, तो ऐसे आपको 10-15 broad themes पता होनी चाहिए आपको, with facts, data facts and examples that better improve your answers or better improve your essay. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, उनसे रिलेटेड स्कीम्स एंड करंट डेटा एंड फैक्ट्स. ये तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए. जो मेजर टॉपिक्स है, जो आप मेजर थिंग्स मैंने बताया आपको रिवीजन करने के लिए, उनके डेटा एंड फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर द सेम ओल्ड स्ट्रक्चर एंड ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. ठीक है, what in the intro define the topics, add quote or context. दो हम इसकी इंट्रो ऐसे राइटिंग एक अलग से वीडियो लेंगे. we'll make another video of deeply how to write a good essay, but this is the overview I am talking about. ठीक है, the causes, the challenges in the body section, the government steps, examples, way forward, and conclusion should be optimistic, solution oriented. So this is a brief this is the brief layout of essay, how to write essay in the examination. Practice, you can practice 2 to 3 essays per weekly, because as I said 40% of your examination or 40% of your marks are covered by essays. So इतना तो इम्पोर्टेंस इसका बनता ही है कि आप वीकली 1-2 मिनिमम तो 2 essays लिखने ही चाहिए आपको फॉर बेटर प्रैक्टिस, और बेटर आप चीजों से जुड़े रहते हो अगर आप 2 essays वीकली लिख रहे हो. वर्ड लिमिट इज around 300 words as already told in the examination. ठीक है, in the instructions it is like 300 words, and time allocation is that you should allocate in the examination while writing essays is 60 to 70 minutes. That is 15 to 17 minutes per essay. Okay,
इससे ज्यादा आप दोगे तो आपका पेपर छूटने वाला है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो अपने एसेस को एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका पेपर फिर छूट जाएगा। ठीक है, मेरे साथ 2 बार हुआ है। नाउ विल टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट में क्या लिखना होता है? मेजरली फॉर और अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट आपको आर्ग्यूमेंट में लिखना होता है। आपको दोनों साइड के जो एरियाज है वो आपको शो करने होते हैं अपने आंसर्स में। फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट एंड नो वर्ड लिमिट गिवन। वर्ड लिमिट नहीं है, बट यूजुअली यू हैव टू स्टिक टू अराउंड 250 वर्ड्स। उसमें ज्यादा आप इंक्रीज मत करिएगा उसको, मैक्सिमम 250 वर्ड्स। ठीक है, आप और उसमें हर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग फॉर, do 6 points. What I used to write 6 points, and for against 6 or 7 points, and for against also 6 to 7 points. ठीक है, with examples if you can if you can manage, अगर आप examples भी लिखोगे तो better आपका आंसर बनेगा। ठीक है, clear stance in the opening में sorry you don't have to give a clear stance in the opening। ठीक है, ओपनिंग में बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन करो, आपको ब्रीफ इंट्रो करना है। ठीक है, ब्रीफ इंट्रो करना है, आपको टॉपिक के बारे में बताना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द फॉर एग्जांपल इफ एनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, एनी डेटा और एनी फैक्ट और एनी कोट, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक। 2-3 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स विद फैक्ट एग्जांपल्स इन एंड चेंजेस टू 6 to 7 in for and against both। ठीक है, mention counterpoints briefly and rebut it and conclude with crisp and balanced hand. Conclusion should be balanced and crisp. I used to write conclusion myself. Many people will tell you that you don't need to write conclusions in the report, in the argument writing especially, but I used to write a very brief conclusion। ठीक है, this is the example. Social media should be regulated by state. You can practice if you want। ठीक है, बाकी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो ऑलरेडी हैं आपके पास, यू कैन प्रैक्टिस ऑन देम ओनली। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद एसे, कीप इट शार्प, लॉजिकल एंड शॉर्ट। ठीक है, आपको फॉर एंड अगेंस्ट लिखना है, उससे ज्यादा आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है, आपके इसमें पॉइंट्स काउंट होंगे और आपके इसमें फॉर एंड अगेंस्ट वाले पॉइंट्स काउंट होंगे। ठीक है, तो आपको शार्प, लॉजिकल और शॉर्ट तीनों चीजें आपको कवर करनी है कि इट शुड बी शार्प, लॉजिकल एंड शॉर्ट। द नेक्स्ट वी विल कवर इज रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, राइट एन एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन एन इंसिडेंट और इवेंट। यही आता है मेजरली जो सीपीएफ एग्जामिनेशंस में है, जो आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी कोई एक ऐसे इवेंट पे या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस पे आपको रिपोर्ट लिखनी होगी। व्हाट इज द फॉर्मेट? द टाइटल, द डेट एंड प्लेस, introduction, especially what, when, where. You have to think in this format. That way you will be better able to answer the report. If you think what, where, when and where happened, ठीक है, अगर आपके ये जो 3 चीजें सॉर्टेड है तो आपको रिपोर्ट राइटिंग शुरू करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यू वोंट हैव टू थिंक अ लॉट। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मेट में अगर सोचोगे तो यू विल बी बेटर एबल टू आंसर द रिपोर्ट राइटिंग। देन द बॉडी, chronology of events and impacts, ठीक है, the actions taken, recommendations and way forward. This is usually the format of report writing, what I used to follow. Fine, ठीक है। Now style, it should be neutral, factual, third person and avoid opinions. You should not place any opinions or personal reservations in the report writing. ऐसा बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए कि आपका कोई opinion आ रहा है उसमें। ठीक है, it should be third person. And it should be factual. The more you make it factual, the better it is presented or the better it looks on paper. जितना भी factual, और it should be neutral. ठीक है, example topics कोई भी for example train कोई accident, natural disaster, security incident, VIP visit, and the word limit given is 200 words. If you analyze the previous year paper, you will be having better understanding कि what topics or what incidents are covered in the report writing topics. ठीक है, now we come to Pressy writing. You have to summarize the passage to 1/3 of length. For example, 450 words of passage would be given, and you have to
you have to summarize into 150 words around. Usually this is the length. 150 words में आपको summary करके रखनी होगी. This is all about Prezi, and it is, you know, the steps are like read carefully, underline keywords को जरूर underline करें because वो तो जरूर आपको अपने Prezi में include करने. Remove example adjectives, examples और adjectives आपको हटा देने because they cover up your word limit. आपको और आपको कम से कम words में use करना है आपको, तो ये हटाना पड़ेगा आपको. Rewrite in own words, keep original. The meaning should be original, and you can write in your original, but you can write in your own words. But meaning should be always original. और short title दे सकते हैं आप. दो मैं नहीं देता था, but you can give if you want. Though it is not mentioned, you have to give a short title and practice passages from these newspapers. आप जितने भी न्यूज़पेपर्स, फॉर एग्जांपल आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हो या फिर कोई आप एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो, फिर उसके कुछ देर बाद आप उसको अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करें. दिस इज द प्रैक्टिस दैट आई यूज्ड टू डू एंड इट हेल्प मी अ लॉट. That I used to read any editorial, and after that in the evening, in the morning I used to read newspaper, in the evening I used to summarize it and used to write it in my own words. पहले तो बहुत खराब सी समरीज बनती थी, मुझे वर्ड्स भी नहीं याद आते थे, और मुझे जो कीवर्ड्स है, जैसे एज आई सेड मैं कीवर्ड्स नहीं इंक्लूड करता था, बट स्लोली विल इम्प्रूव. ठीक है, तो you can for the practice you can take passages or editorials from Hindu or Indian Express. So now we will come to comprehension. ठीक है, comprehension is very easy part. This you can do very quickly. Direct questions from a passage are asked, and read passage once quickly, then carefully. एक बार क्विक रीडिंग दीजिए और दूसरी बार केयरफुल रीडिंग दीजिए. ठीक है, राइट शॉर्ट प्रिसाइज आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, शॉर्ट प्रिसाइज आंसर्स, कीवर्ड्स वहीं से उठाएंगे और शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर्स लिखने हैं आपको. डोंट ऐड आउटसाइड नॉलेज. अपनी नॉलेज कुछ नहीं ऐड करनी. आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है नहीं पता है, इट डजंट मैटर. व्हाट इज मेंशन्ड इन द कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू जस्ट स्टिक टू इट ओनली. ठीक है, अपनी पर्सनल नॉलेज कोई इस्तेमाल नहीं करनी उसमें. After that, the grammar portion, the grammar, vocabulary और usage. This is the portion. ये 25 marks का आता है आपका around. ठीक है, it covers fill in the blanks, rewrite the sentences. For example, you have to use the indirect speech thing, the active and passive voice, change the verb form. These are just few of the examples that I have like written, and these are usually repeated. तो आपको basic grammar जरूर आनी चाहिए, and basic जो English language के जो chapters हैं वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए. ठीक है, टू कवर दिस. एंड सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, these are also asked. आपको सेंटेंस करेक्ट करनी चाहिए. एंड यूज ऑफ फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस. ठीक है, टेक डाउन और गेट अवे, these are like some of the phrases that you have to use in the sentences. ठीक है, now I'll tell you the strategy for it, especially for the grammar part. What I used to refer was Wren and Martin book. ठीक है, Wren and Martin, or you can also refer to the Lucent English, but I used to refer the Wren and Martin. Or for ISC boards, there is a Total English book. This you can refer also. So what I personally used to refer was Wren and Martin. Newspaper daily, because it will help you build your vocab, as well as it will increase your word limits. Okay, you will be able to, or you will be easily using the words in your sentences in your daily life, और इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. इट हेल्प आपका ऐसे कंटेंट भी एनरिच होगा, एंड आपकी साथ साथ वोकैब भी एनरिच होगी इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली, क्योंकि बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं उसमें न्यूज़पेपर्स में जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो और अपनी वोकैब अच्छी कर सकते हो. एंड सॉल्व PYQ, पैटर्न्स ऑलवेज रिपीट इन द ग्रामर सेक्शन. तो PYQ जब आप सॉल्व करोगे तो पैटर्न्स जरूर रिपीट होंगे. आप ये देखोगे कि पैटर्न्स जरूर रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न्स एंड टॉपिक्स. ठीक है, नाउ आई विल कम टू सम प्रिपरेशन टिप्स. ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस, एसे, प्रेसी एंड शॉर्ट नोट्स. आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए. ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, बिकॉज 3 घंटे आपके एग्जामिनेशन के 180 मिनट्स कब गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा. So from the very first minute, you have to write in full throttle speed होनी चाहिए आपकी very first minute से ही.
only then you will be able to complete your examination in time. ठीक है, तो फुल थ्रॉटल आपको फर्स्ट मिनट से ही अपनी स्पीड रखनी है, देन ओनली आपको लगेगा कि आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो पाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर कॉमन कंप्लेंट कि पेपर 2 कंप्लीट ही नहीं होता है टाइम पे. सो दिस इज द इशू कि पेपर 2, हाँ ऑब्वियसली पेपर 2 इज लाइक अ बिट लेंदी, क्योंकि आपको 4 ऐसे, 2 रिपोर्ट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स, फिर प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, देन जनरल ग्रामर, आपको इतना सब कुछ करना होता है सिर्फ 180 मिनट्स में. सो यू हैव टू बी लाइक वेरी श्योर कि आपको फुल थ्रॉटल फ्रॉम मिनट 1 जरूर लिखना, और वो कैसे आएगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा आपका. ठीक है, सो दिस इज द मार्क्स, रिवाइज ग्रामर बेसिक्स, ग्रामर के बेसिक्स जरूर रिवाइज करो, बिकॉज इट स्मॉल मिस्टेक्स कॉस्ट मार्क्स, बिकॉज आपका जो बेसिक ग्रामर है वो आप इजीली, जैसे मैंने बताया था ना एप्टीट्यूड पेपर 1 में, सेम हेयर ग्रामर का अगर आपको आता है तो आप इजीली स्कोर कर लोगे, और वो आपके 25 में से अगर 20 मार्क्स आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि आप फिर आपको अगर दूसरे सेक्शंस में भी कम मार्क्स आते हैं तो इट विल कंपनसेट. ठीक है, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट ब्रेकअप व्हाट आई यूज्ड टू डू इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. फॉर एसे आई यूज्ड टू गिव 65 to 70 मिनट्स, आर्ग्यूमेंट्स के लिए 25 to 30 मिनट्स, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स है, 4 एसेस, रिपोर्ट के लिए 20 मिनट्स, 18 to 20 मिनट्स, प्रेसी के लिए 20 to 25 मिनट्स, कॉम्प्रिहेंशन के लिए 18 to 20 मिनट्स, एंड ग्रामर के लिए 15 to 20 मिनट्स. अगर आप इस ब्रेकअप में आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आप इजीली एग्जामिनेशन, इजीली पेपर कंप्लीट कर सकते हो टाइम पे. ठीक है, सो आपको टाइम मैनेजमेंट, इट इज अ वेरी बिग फैक्टर इन पेपर 2, यू हैव टू स्पेशली लुक आफ्टर इट. ठीक है, तो इतना मेरा यूजुअली यही टाइम ब्रेकअप रहता था, मैं इतना टाइम देने की कोशिश करता था. अगर इससे ज्यादा दे दिया आपने, फॉर एग्जांपल इसमें 70 का 80 मिनट्स हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको अब वो चीज अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे. मे बी वो चीज बहुत ज्यादा आसान थी, तो आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, एंड यू हैव टू बी श्योर कि आपका जो टाइम लिमिट है वो इससे अगर मैच हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप अपना टाइम जो है बेटर यूटिलाइज कर सकते हो और दूसरी चीजों में, और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बेटर हो जाएगा. ठीक है, नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बच्चे करते हैं, जो इसमें कॉमन मिस्टेक्स करते हैं पेपर 2 में, एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं लिखने, इग्नोरिंग ग्रामर एंड सेक्शन, ये तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है. दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स आई एम सेइंग, बिकॉज दीज आर इजी स्कोरिंग. एज आई सेड कि आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो इसमें. 25 में अगर 20 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो इट इज वेल एंड गुड. ठीक है, कॉम्पी सेंटेंस इन प्रेसी इंस्टेड ऑफ रिफ्रेजिंग, आप रिफ्रेज करो. फॉर एग्जाम्पल डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हो, आपका एक वर्ड बच रहा है वहां पे. इज नॉट को isn't लिख सकते हो आप. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, आपके वैसे वर्ड्स बचेंगे. तो आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप पता होनी चाहिए. पुअर टाइम मैनेजमेंट मैंने जैसा बताया आपको, पेपर खत्म नहीं होता है 180 मिनट्स में. लीविंग ऐसे इनकम्प्लीट, आप लास्ट में ऐसे करोगे, और ऐसे जो सबसे ज्यादा मार्क्स के 80 मार्क्स के वैसे आपके छूट जाएंगे. आपका फिर पेपर 2 का जो आपके जो मार्क्स है, रिक्वायर्ड मार्क्स है, वो नहीं आ पाएंगे, आपका सिलेक्शन रुक सकता है. ठीक है, अनटाइडी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. मेरी राइटिंग बहुत खराब थी इनिशियली, बट मैंने थोड़ा उस पर वर्क करके उसको थोड़ा सुधारा है. ठीक है, राइटिंग आपकी भी सही होनी चाहिए, और हेडिंग एंड सब हेडिंग्स दोगे अगर आप अपने एसेस में या फिर उसमें, तो फिर आपको वो बेटर प्रेजेंटेशन में हो जाता है. आपका जो प्रेजेंटेशन आपकी जो एसे की है वो बेटर हो जाती है, और आपको उससे मार्क्स जो है आपके बूस्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो नाउ माय फाइनल वर्ड्स टू यू. पेपर 2 इज नॉट अबाउट फैंसी इंग्लिश, इट इज अबाउट क्लियर थिंकिंग एंड बैलेंस्ड एक्सप्रेशन. क्लियर थिंकिंग भी, जो आप सोचोगे और जो आप एक्सप्रेस करोगे. थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट. तो आप जितना बेहतर अपने दिमाग में स्ट्रक्चर थिंक कर पाओगे, ठीक है, उतना बेटर ही आप एक्सप्रेस कर पाओगे. तो आपकी फैंसी इंग्लिश नहीं चलेगी यहाँ पे. ठीक है, आप कोई भी किसी भी बोर्ड से आ रहे हो, या फिर छोटे बोर्ड से, या फिर बहुत बड़े बोर्ड से, बोर्ड डजंट मैटर. योर थिंकिंग एंड योर बैलेंस एक्सप्रेशंस मैटर इन पेपर 2. ठीक है, even with average English you can score high if your content and structure are solid. So content and structure, इसको ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, अगर इंग्लिश अगर तो आपकी थोड़ी नॉर्मल भी है, सो इट इज नॉट अ बिग मैटर, कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है. अगर इंग्लिश नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हो, इट इज ओके. ठीक है, बट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. आपका कंटेंट एंड स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. ठीक है, एम फॉर 100+ मार्क्स. 100+ मार्क्स आप जरूर एम करो. ठीक है,
to score your place in the final merit list. As I already said, paper 2 decides your ranking. Paper 1 decides your selection. Paper 2 decides your ranking. अगर आपके 100 marks आ रहे हैं, then it is a very good score. 100 plus marks, it is a very good score. ठीक है? Remember, paper 1 shows your knowledge. Paper 2 shows your personality. How better you think. Paper 1 is objective. पेपर 2 सब्जेक्टिव. तो अगर आप जितना अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी पेपर पर रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है? प्रैक्टिस, कीप इट सिंपल एंड यू विल एक्सेल. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डेली अपने स्टडीज को टाइम डिवोट करोगे, जितने आप मॉक सॉल्व करोगे या जितना पेपर लिखोगे, उतना आप बेटर होगे. ठीक है? सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन. जय हिंद. Thank you guys. Thank you from the UC Academy.